Hello everyone. Today we have with us Mrunmayee Bedekar. She has secured 99.8 percentile in MBA CET 2023. First of all, Mrunmayee, I would like to congratulate you for such a fabulous score. ये जो Thank you. स्कोर है आपका, I have seen many students reach this score in their second or their third attempt, but you have reached this score in your first attempt itself, Yeah. right? So basically, we want you to just share your journey, like from how did you start and what preparations you did in reaching this score, correct? Oh, So can you like brief me about your background, your academics, your schooling? yeah. I did my schooling from Amravati, Golden Kids, Okay. 10th and 12th. Mm-hmm. And after that, I did engineering, BTech in electrical engineering, and took an IT job, corporate job, and did the MBA preparations side by side. Side by side. Yes. Okay, basically you mean you did your MBA CET preparation along with working in an IT Yes, company. yes, Okay, yeah. that seems to be a tough job. All right. Okay. So I would like to ask, like, why did you join my online program? Means, like, what made you choose me, and what made you choose my online program? Because I believe you were working in the company at a work from home place, right? Yes, yes. Basically, you were here itself in the city. So Yes. basically, you chose me instead of joining my classroom program. You chose me in the online program. I just want to know the reason. तो ऑनलाइन क्योंकि मेरा तो जॉब था, हाँ. तो मुझे ऑनलाइन ही चाहिए था. और फिर मैंने थोड़ा सा पहले MBA CET का मतलब पैटर्न वगैरह थोड़ा देखा था, और फिर मैंने आपका मॉड्यूल्स देखा ऑनलाइन में, जो ऐप था उसमें मॉड्यूल्स देखा, और फिर टेस्ट्स वगैरह देखा. तो उससे मुझे लगा कि ये काफी मतलब इट्स वेरी इन लाइन विद द पैटर्न ऑफ द एक्चुअल एग्जाम, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया. और ऑनलाइन तो मुझे मतलब वो चाहिए ही था. चाहिए. ओके. और प्लस उसमें बूस्टर्स और क्विजेस ये सब का जब पता चला, तब तो आई वाज वेरी श्योर ऑफ इट. Right. Okay. That seems nice. Okay, so basically, I would like to know. I believe I just saw some time back. You basically joined us around in the month of September or October, Yes. somewhere around that. Yes. So I just wanted to know what was your timetable during that time. Means month wise, like September to November or December, followed by Jan, Feb. What was your schedule? Can you like brief it? Okay, yeah. सो फ्रॉम जब से ज्वाइन किया तब से दिसंबर वगैरह तक तो मैंने ऑनलाइन वाले जो भी मॉड्यूल्स थे, मतलब टॉपिक्स थे, वो सब देख लिए. और उसमें साइड बाय साइड टेस्ट होते थे. तो मतलब मुझे उससे काफी श्योर मतलब हो जाती थी मैं कि कितना मतलब किसमें कितना मुझे ध्यान देना है, कितना टाइम स्पेंड करना है कौन से टॉपिक में. तो ये सब मैंने दिसंबर तक किया. और तब तक मुझे आपके वो मॉड्यूल्स भी मिल गए थे, मतलब वो बुक्स. राइट. तो फिर जनवरी से मैंने ये स्टार्ट किया कि मेरा जो पहले मैंने एनालिसिस कर लिया था कि कहाँ पे मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, वो फिर मैंने बुक से किए. जैसे पजल्स वगैरह होते हैं, राइट, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था. तो फिर जनवरी से मैंने थोड़ा थोड़ा उसको ज्यादा टाइम देना चालू कर दिया था. एंड देन उसके बाद जब मॉक्स आए, आई बिलीव जनवरी एंड में आए. हाँ, तो तब से तो मैंने एक ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे तो मैं मॉक्स देती थी, और फिर लास्ट मंथ में मैं रोज देती थी मॉक्स, ऐसा. ओके. दैट्स फाइन. बेसिकली आपका था कि बेसिकली दिसंबर और मे बी जैन फर्स्ट वीक, दिसंबर एंड तक के यू मीड योर मतलब पूरा टॉपिक्स पढ़ के खत्म करना था टिल द टाइम यू ज्वाइन. एंड February you dedicated it to revision, mocks and all. January end से you started with mocks, and March में तो एग्जाम ही आया था. Correct, absolutely fine. In fact, I still remember when you joined us, after you joined immediately there was दिवाली ब्रेक, आई गेस. बट आपने वो शायद बहुत क्रेजीली यूज किया. व्हेन आई सॉ द बैक एंड रिपोर्ट, मतलब दिवाली के डे पे भी इनफैक्ट आपके काफी सारे लेक्चर्स और टेस्ट का मुझे यहाँ पे रिपोर्ट दिखता था. तो दैट वाज अ वेरी कमेंडेबल पॉइंट दैट यू डिड दैट. बेसिकली आई आल्सो वांट टू नो कि आपके ऑफिस के अलावा, मतलब आप आई बिलीव 7 आवर्स 8 आवर्स जो भी आप ऑफिस का देते होंगे, उसके अलावा हाउ डिड यू मैनेज योर टाइमिंग हियर कि वो भी करना है और ये भी करना है? बिकॉज जनरली आई हैव सीन जो वर्कएक्स के साथ करते हैं MBA CET का प्रेप, वो या तो कुछ टाइम पहले वर्क मतलब आइदर दे क्विट देयर वर्क, या तो फिर जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो कंप्लीटली वर्क नहीं करते उस वे से उन लोग को बहुत एक अच्छे से टाइम मिल जाता है. बट हाउ वर यू एबल टू मैनेज? तो मेरा ऐसा था कि ऑफिस का टाइमिंग मेरा सेकंड शिफ्ट का रहता था, 12 to 9 समझो ऐसा. ओके. तो हाँ, और मेरा लकीली आई एम अ वेरी मॉर्निंग पर्सन, तो मेरा पढ़ाई वगैरह सुबह अच्छे से हो जाता है. सो आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली, एंड फिर मुझे मॉर्निंग में ऐसा अच्छे से 3-4 घंटा तो भी मिल जाता था.
तो जैसा कभी मॉक्स देना रहता था तो मैं मॉर्निंग में दे देती थी, और फिर इवनिंग में जब भी मेरे को टाइम मिले मैं एनालिसिस कर देती थी, मतलब उसका आफ्टर ऑफिस। जनवरी फरवरी की बात? यस, राइट। और पहले भी मेरा ऐसा था कि सुबह ज्यादा टाइम मिलता था तो मैं सुबह ही पढ़ूंगी 4 घंटा, कभी जैसे आपने बोला दिवाली वगैरह छुट्टी रहा तो फिर तो 5 घंटा 6 घंटा ऐसा। ओके ओके, yes, all right. अरे वाह, that's great. Okay, and I just wanted to ask, like, how many number of mocks did you attempt overall? Overall, I think I gave around 30 to 40 mocks. Full mocks? Yes, 30 yes, to 40 full mocks? yes. Okay. And sectional तो आपके जितने भी थे वो सब दे ही देती थी मैं। Perfect. All right. And anything that you like the most in our online program, मतलब जो ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत अच्छी चीज that you felt कि बहुत हेल्प हुआ इससे स्कोर में? एक तो ऐसा है कि आफ्टर एवरी टॉपिक, नॉट इवन आफ्टर एवरी चैप्टर, आफ्टर एवरी टॉपिक यू हैव टेस्ट, तो वो समझ जाता है कि एक चैप्टर में भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो तुमको किस क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ जाता है उससे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद एंड में जैसा मॉक्स भी दे रहे हो पर उसके साइड बाय साइड अपने बूस्टर्स और क्विजेस दिए थे, मतलब मॉक्स के टाइम भी हमको थोड़ा चैप्टर वाइज थोड़ा फोकस करने का टाइम मिलता था। तो वो ये दोनों चीजें मेन। और दूसरा है कि वीडियोस होते हैं तो मैं रिपीटेटिवली देख सकती हूँ अगर कुछ मिस हो गया तो वैसा, क्योंकि ऑफिस के वजह से मैं अटेंड तो नहीं कर पाऊंगी रोज क्लासरूम, तो इसलिए, और वीडियोस लेक्चर्स दोबारा देख सकूंगी किधर भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स मेरे लिए काफी अच्छा। अरे वाह, दैट वाज ग्रेट। वो अपने बूस्टर्स क्विजेस तो सही, वो तो इनफैक्ट मेरे भी थोड़े फेवरेट्स ही थे, क्योंकि वो जनवरी फरवरी में जब फुल मॉक्स पे ही इन्वॉल्व रहते हैं तो कभी कभी टॉपिक वाइज का प्रेप छूट जाता उसमें भी, तो मे बी दैट हेल्प, वो करेक्ट पॉइंट था। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स जो अभी नेक्स्ट सीईटी का प्रेप कर रहे हैं, एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? या सो एक तो है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट टू गिव मॉक्स, अगर तुमको स्टार्टिंग में कम स्कोर आ रहा है तो थोड़ा ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि वो बढ़ता ही है बाद में, जैसा तुम जितना भी ज्यादा मॉक्स दोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसका मार्क्स बढ़ेगा। तो ये क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं काफी डीमोटिवेट हो गई थी स्टार्टिंग में, तो वो नहीं देना। और कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो सर तो है ही ऑब्वियसली, तो वो है। और दूसरा कि मतलब मैं तो कहूंगी जैसा मैंने क्या किया था पढ़ने के बाद में, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पूरा कोर्स होने के बाद ही मॉक्स दो, बट आपका मुझे कॉल आया था एक बार कि वी शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स व्हेन वी आर रेडी विद 70% ऑफ आवर कोर्स। 70%, तो वो मैंने नहीं किया था, वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि अगर तभी स्टार्ट किया होता तो मतलब और ज्यादा मॉक्स दे देती थी ऐसा, तो वो करना चाहिए। Okay, all right, that was very sweet of you to give advice to the juniors. All right, so see you soon, है ना? Yes, thank you for all the advice. Hope all the students who must be watching this, hope उनको कुछ इस चीज से help हो जाए। हाँ, all right, thank you.